Hello friends, once again welcome to our YouTube channel Physiogyaan. Myself Dr. Suchit and I am going to complete my next part of Art of History Taking. That is today's lecture is part 2 of History Taking. So without wasting much time, I am going to talk about based on factors associated with particular history taking. In previous lecture we have seen why it was important, we have seen the fundas of it and tip of it. In this lecture we are going to check all the 3 parts which I have mentioned over here. Okay, so first and the foremost, based on factors. Now what is this factor? Based on your observation. Based on your observation. The next part is based on your complaint. Like what patient complains. According to that we can understand with the history. Okay, the third part is by the listening, like what we listen from the patient. So listen, okay, and or hearing, whatever you are okay with it. Okay, so hearing or listening to the patient. And the last part is duration. This we are going to see in detail. Okay, what all things comes in. There are many things under onset, progressive disorders, improving disorders, and all sort of things. So we will discuss in detail with the duration. Okay, so what I'm going to talk about first is the observation. Now when patient comes to you, now one of my patient comes to me, open the door. Okay, he opened the door, he has come for the consultation over here, he's coming for the consultation. So now he's coming for the consultation keeping this kind of arm and is walking this kind of. So what all things can be observed? Yes, what I can observe is his movement. Okay, his walking pattern, his keeping his arm up and walking. So that is one of the pattern. So I can say in this particular pattern a person of stroke walks. So I can say might be he has stroke. He might be suffering due to stroke. So I get an idea, okay, to reach again over here. Okay, one of the example. When I talk about the complaint. Now patient complains, he complains of pain or the tingling sensation. Again, I have discussed in the previous in condition like diabetic neuropathy. So if the patient is saying मेरे पैर में tingling आ रहा है, like numbness आ रहा है, वो मेरे को feel नहीं हो रहा है, so there is something with sensation, something. Okay, so what he say, मुझे feel हो रहा है ऐसे, tingling feel हो रहा है sensation के वजह से. तो मुझे क्या पता चल रहा है कि इसको कहीं ना कहीं तो शायद न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम हो सकता है. मे बी डायबिटिक न्यूरोपैथी, मे बी. So this is one kind of example, okay, with the complaint. Okay, next, listening to the patient. If in conditions like the patient is not able to speak, we say it is aphasia. Okay, we call it as aphasia. ये क्यों होता है? If motor area, Broca's area number 44, whatever you want to call it. So अगर ये part प्रॉब्लम रहता है या फिर वर्निकेज एरिया में प्रॉब्लम रहता है, पेशेंट हमसे बोल नहीं पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, तो ये हम लोग को पहला एग्जांपल देता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है. ही माइट बी बिकॉज ऑफ सम ऑफ द एरिया ऑफ हिज ब्रेन इज इन्वॉल्व ऑफ दिस एरिया ऑफ मोटर एरिया ऑफ हिज ब्रेन. इसके वजह से शायद वो बोल नहीं पा रहा हो. वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इट. ओके, नाउ इन डिटेल वी विल टॉक अबाउट ड्यूरेशन. ना अभी जब हम लोग ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले मुझे छोटा सा एक एग्जांपल देना है आपको. इन केस ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशन, एक क्रॉनिक और एक्यूट, मैं लेता हूं पार्किंसन डिसीज लेता हूं यहां पे. ओके, अभी पर्सन विद एक्यूट पार्किंसन डिसऑर्डर वो कैसे आएगा आपके पास? शायद उसको थोड़ा स्लोनेस होगा, शायद थोड़ा ट्रेमर होगा, थोड़ा सा देयर इज स्लोनेस ऑफ मूवमेंट एंड देयर इज ट्रेमर, बट इट वोंट बी एज द पर्सन. क्रॉनिक पर्सन को जितना होगा उतना वो एक्यूट वाले को नहीं होगा. तो आई कैन से एक्यूट के लिए कम है, तो ये ड्यूरेशन मैटर करता है. जैसा आपका डिसीज बढ़ता है आपका सिम्टम्स बढ़ सकता है. तो एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशंस मैटर करते हैं. Then what are the other factors? Now in other factors I can say if it is a static disorder,
or it is a progressive disorder, or it is a re-emittent disorder, or it is a improving disorder. Okay, static, progressive, re-emittent, improving. Now we can see one of the example for each. Now in static condition, if it is a tumor, okay, if it is a small tumor, there is a tumor here, so he may persist some of the symptoms, but that symptom is not progressing, it is static. Like उसको weakness हो रहा है ये part of the body में, तो उतना ही है, वो बढ़ नहीं रहा है, तो it is there. So this is one of the example. Other example for a progressive disorder, or one of the thing is your again Parkinson is progressive disorder, जहाँ पे substantia nigra का degeneration होता है, जिसके वजह से dopamine produce नहीं होता है. This is one of the factor of this. Other conditions, there are like multiple you have muscular dystrophy. We will discuss in detail about muscular dystrophy in one of the part, so in the same duration. I'll talk about it later. So now, अगर वो re-emittent है, if a condition like multiple sclerosis, okay, if the person with multiple sclerosis जो बोलेगा कि मुझे weakness था, अभी मैं ठीक हूं, फिर थोड़े टाइम बाद आके आपको बोलेगा कि अब मुझे लग रहा है कि मेरा वीकनेस थोड़ा बढ़ गया है, बट अभी थोड़ा स्टेबल है थोड़ा, तो यू कैन सी सम काइंड ऑफ लाइक इंक्रीजिंग फैक्टर, थोड़ा स्टेबल रह के थोड़ा इंक्रीजिंग हुआ. तो ये सब आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आता है. मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बहुत सारे टाइप्स है, जो प्रोग्रेसिव में भी आ सकता है. देयर आर सेकेंडरी प्रोग्रेसिव, प्राइमरी प्रोग्रेसिव. दिस इज वन ऑफ द फैक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दैट इज री-एमिटेंट. ओके, नाउ द इंप्रूविंग पार्ट. नाउ इंप्रूविंग में, फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज CVA और RTA, ऐसे कंडीशन में लाइक सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, आपको ऐसे वाले कंडीशंस में क्या होता है, अगर आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, तो ब्रेन इन्वॉल्व होने के बाद ये कंडीशंस इंप्रूवमेंट दिखाते हैं. थोड़े टाइम के बाद वो बेटर वॉकिंग कर पाते हैं. शायद पहले वो नहीं कर पाते होंगे, बट वो चल पाते हैं. तो ऐसे सारे कंडीशंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम का चीज बहुत ज्यादा काम करता है. दैट वी विल डिस्कस लेटर इन अवर थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट्स. बट नाउ आई वांट टू से कि वो इंप्रूव होते हैं. सो दैट काइंड ऑफ डिसऑर्डर फॉल्स अंडर दिस. सो दिस आर अंडर ड्यूरेशन. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्यूरेशन इज योर onset. Okay, again onset. Now I will talk about muscular dystrophy. There are many types of dystrophy which will be showing you with the age related. So क्या होता है muscular dystrophy में, एक एज में उनको सिम्टम्स शुरू होते हैं. जब वो टो वॉकिंग करना शुरू करेंगे, फिर वो बढ़ते बढ़ते जाएंगे. 7 years यूजुअली उनको शुरू होता है टो वॉकिंग, फिर वो बढ़ते बढ़ते और डिक्रीज होता है, फिर वो चलना बंद कर देते हैं. दैट इज काइंड ऑफ DMD. ओके, अगर बड़े में होता है, बड़ों में होता है, दैट इज BMD, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. तो ऐसे कंडीशंस आपके ऑनसेट बेसिस पे होते हैं. अगेन अ पार्ट ऑफ अ ड्यूरेशन. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट योर ऑब्जर्वेशन, योर लिसनिंग, योर ड्यूरेशन एंड योर कंप्लेंट. ओके, सो दिस आर बेस्ड ऑन सम ऑफ द फैक्टर्स. द नेक्स्ट पार्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंडीशन. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द कंडीशन, किसका बात हो रहा है? न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस. ओके, सो हमारे सिस्टम्स क्या होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, आई एम टॉकिंग इंडिविजुअली नाउ. फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम परसिस्टिंग ऑफ योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब इसके रिलेटेड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? कॉग्निशन डिसऑर्डर हो सकता है, मोटार प्रॉब्लम हो सकता है, सेंसरी प्रॉब्लम हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है, गेट हो सकता है. देखिए कितने सारे प्रॉब्लम्स आ गए हमारे. अब पेशेंट आ रहा है हमारे पास, वो बोल रहा है कि मुझे ये याद नहीं रहता, मुझे ये कुछ याद नहीं रहता. अगर हिस्ट्री टेकिंग के टाइम पे आपको ये पता चला तो आपको लग रहा है कि समथिंग इज रिलेटेड विद योर कॉग्निशन. जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, अगर पेशेंट ऐसे चल के आ रहा है, आपको पता है कुछ मूवमेंट में प्रॉब्लम है, तो आपको बोल सकता है. कभी कभी हमारे पेशेंट्स हमको बोलेंगे कि आई फील लाइक दिस इज मोर हैवियर देन दिस, और आई फील यहां पे थोड़ा कम लगता है कुछ भी, या फिर यहां पे ज्यादा लगता है. तो मैं क्या बोलूंगा कि उसको सेंसरी इश्यूज है, ये सब ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. ओके, अगर वो बोलेगा ऑल्टर्ड, लाइक पैर में सेंसेशन, ऐसे लग रहा है कि प्रिकिंग हो रहा है, बट कहां हो रहा है मुझे फील नहीं हो रहा है, SCI पेशेंट्स में आपको दिखते हैं. तो दिस आर ऑल रिलेटेड टू दैट. कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम रहा, बैलेंस का प्रॉब्लम रहा, तो हम बोल सकते हैं कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, या तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम है. सो देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स विच विल लीड टू योर दिस प्रॉब्लम. यहां से हम लोग
पता चलता है हमको, फिर यहां से हम लोग इसको एग्जामिन कर सकते हैं, तो बैक ऑफ द माइंड हमारा चलता रहेगा कि ये प्रॉब्लम है, मोटार प्रॉब्लम है, सेंसरी प्रॉब्लम है, बैलेंस इश्यू हो रहा है या कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है। तो ये सारे चीजों को हम लोग कलेक्ट करके बैक ऑफ द माइंड में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में उसको अच्छे से असेस करके हम लोग डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन रीच विद द हेल्प ऑफ योर कंडीशन। ओके, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ जब मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करता हूं तो यूजुअली मेरे दिमाग में आता है न्यूरोजेनिक पेन, ओके, देन आई विल से वीकनेस, मसल वेस्टिंग, आई विल से सेंसेशन। ओके, सो ऐसे सारे कंडीशन में मुझे दिमाग में आता है, अगर एक पेशेंट आपके पास आता है, आपको बोलता है कि मेरे हिस्ट्री में मुझे लाइक मैं आपके पास आया हूं, मुझे पेन, मतलब पेन वगैरह कुछ नहीं है, बट मेरा हिस्ट्री में डायरिया हो रहा था, मुझे डायरिया था। देन डायरिया होने के बाद मेरे को यहाँ पे थोड़ा सेंसेशन, नमनेस वगैरह फील होने लगा, फीट में, स्पेशली फीट में मुझे फील होने लगा, और मुझे थोड़ा हैंड में फील होने लगा। ठीक है, देयर वाज अ लॉस ऑफ सेंसेशन इन योर फीट एंड हैंड। ओके, नाउ ये ऑल्सो से मुझे आईसीयू में एडमिशन हुआ था मेरा, तो मुझे डायरेक्टली दिमाग में आता है कि इस बंदे को जीबीएस हो सकता है। वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर दिस, उसे जीबीएस हो सकता है। सी, मैंने कैसे, सिर्फ हिस्ट्री से हम लोग यहां पे पहुंच गए, फिर हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे जरूर, बट हम लोग को हिस्ट्री से ही उसका डायग्नोसिस बहुत अच्छे से हम लोग पहुंच गए, हम लोग बहुत अच्छे से यहां पे आ गए। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। Always a problem for a student. As a student, even for me, it was a problem. And most of the people I have seen, practitioners, students, कि सब यही बोलते हैं कि सर इसको कैसे डील करें, इसको करें क्या हम लोग, बट इसको हम लोग अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं इन कंडीशंस लाइक जहां पे ओवर स्वेटिंग होता है पेशेंट्स को, ओवर स्वेटिंग। ओके, फिर पेशेंट बोलेगा कि मैं उठ के बैठता, मतलब बैठ के उठता हूं तो मुझे चक्कर आता है, फेंटिंग होता है। ओके, मे बी due to orthostatic intolerance, one of the problems in orthostatic hypotension. Okay, easy है, क्या होता है, फेंटिंग वाला फीलिंग आया, ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस के वजह से होता है, ये भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लीडिंग टू ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो इसके वजह से हम लोग एएनएस के एक छोटे से पार्ट के वजह से हम लोग उसके सिम्टम्स तक पहुंच गए। ओके, अभी मैं नेक्स्ट पार्ट बोलता हूं आपको। अगर एज है 40, पर्सन का एज 40 है, वो बोलता है 5 to 10 ईयर्स में मेरा सिम्टम्स बहुत बढ़ गया है, मे बी आई से इट इज मल्टी सिस्टम एट्रोफी, वन ऑफ द टाइप ऑफ एएनएस डिसऑर्डर, एएनएस डिसफंक्शन। सो ऐसे हिस्ट्री से हम लोग उसको उसकी तरफ पहुंच सकते हैं। ओके, दिस इज अ गुड एग्जांपल। क्रेनियल नर्व्स, आई वांट टू डिस्कस अबाउट क्रेनियल नर्व्स, सॉरी। सो there are 12 cranial nerves. For example, आपका पेशेंट आपको बोलता है कि सर मैं जब उठ के खड़े रहता हूं मुझे चक्कर आने लगता है, मैं जब ऐसे ऊपर नीचे देखता हूं, साइड आगे पीछे करता हूं तो मुझे चक्कर आने लगता है। तो एज अ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनर मुझे क्या दिमाग में आना चाहिए, मुझे आना चाहिए कि शायद इसका वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, स्पेशली द वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ दिस नर्व इन्वॉल्व हो सकता है, लीडिंग टू काइंड ऑफ अ वर्टिगो। इट कैन बी अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर द सेम। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है वर्टिगो, आई एम नॉट सेइंग इट इज एब्सोल्यूट, बट एक टाइप के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वर्टिगो आ सकता है। अबाउट क्रेनियल नर्व्स we will be having a detailed examination part and detailed understanding about its all the anatomy and physiology in very much detail. Please wait for our upcoming lecture on this. Okay, so we are going to discuss on that. So overall today हमने क्या क्या डिस्कस किया, इसका मतलब ये था कि हिस्ट्री टेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है। हमने पहले वाले लेक्चर में भी देखा था कि फंडास क्या क्या होते हैं टू हिस्ट्री टेकिंग करने में। हम लोग को लगा था कि अटेंटिव लर्निंग लिसनिंग क्या होता है, अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन लेना होता है, नेटिव लैंग्वेज में आप उससे बात करो, तो ये सब कितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। उसके अलावा हमने टिप्स दिए थे आपको कि पूरे एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें देखोगे उतना काफी है। इस बार हमने आपको कंडीशन वाइज, लाइक आपको हर एक कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स, हर एक का एग्जाम्पल्स हमने दिया है आपको, तो वो चीजें हम लोग उसको समराइज कर रहे हैं
एंड हम लोग उसके अलावा आपको ये भी बताया कि बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन योर कंप्लेंट्स, बेस्ड ऑन योर लिसनिंग, आपको क्या क्या चीज आप कंडीशन वाइज आप कर सकते हो. तो वी हैव गॉन इन डिटेल. व्हाई वी आर टेकिंग दिस इन सो मच डिटेल? बिकॉज आवर होल series is coming up on neurological examination. So please आप जरूर देखिए हमारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का सीरीज ऑफ एग्जामिनेशंस. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अगेन, एंड प्लीज लाइक आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज press the bell icon so you can get the recent notification of our upcoming videos. Thank you so much.